ایران کا اسرائیل پر میزائلوں سے حملہ، تل ابیب اور دیگر شہروں پر میزائلوں کی بارش کر دی، 400 میزائل داغ دیے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران کی طرف سے 100 میزائل فائر کیے گئے۔ اسرائیلی آئرن ڈوم حملہ مکمل طور پر روکنے میں ناکام، متعدد ایرانی میزائل نشانے پر جا لگے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے۔ حملوں کے وقت اسرائیل کے تمام شہروں میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی شہریوں میں خوف و ہراس، حکومت نے اپنے شہریوں کو بم پروف بنکرز میں جانے کی ہدایت جاری کر دی۔ اسرائیلی فوج نے کچھ میزائل کے گرنے کا اعتراف کر لیا، کہا جانی نقصان نہیں ہوا۔ دفاعی نظام نے بہت سے ایرانی میزائلوں کو مار گرایا ہے۔ اسرائیل اور اردن نے سویلین طیاروں کے لیے فضائی حدود بند کر دی۔ اسرائیل کی ایران کو سنگین نتائج کی دھمکیاں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا گیا۔ اسرائیل پر ایران کے میزائل حملے کے بعد امریکی صدر نے قومی سلامتی ٹیم کی میٹنگ بلا لی۔ جو بائیڈن نے امریکی فوج کو اسرائیل کی مدد کی ہدایت کر دی، کہا امریکی فوج اسرائیل کو نشانہ بنانے والے میزائلوں کو مار گرائے۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایرانی میزائلوں نے تل ابیب میں اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کا کہنا ہے اسرائیل پر حملہ اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کا بدلہ ہے۔ اسرائیل کو ایرانی خود مختاری کی خلاف ورزی کا جواب دیا گیا۔ اسرائیل میں اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے کارروائی کی تو بھرپور رد عمل دے گی۔ میزائل حملے کے بعد کسی بھی جوابی کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل دنیا میں غنڈہ گردی کرتا ہے اور چاہتا ہے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ ایرانی حملے سے ثابت ہوا کہ ایسا نہیں کہ اسرائیل جو چاہے کرتا رہے۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی گھر کہتی ہیں اسرائیل کو عالمی قوانین توڑنے کی کھلی چھوٹ دی گئی۔ اسرائیل کے غزہ اور لبنان میں حملوں کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ملیحہ لودھی کا کہنا ہے ایران کو نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل پر حملہ کرنا پڑا۔ معلوم نہیں کہ موجودہ صورتحال کس رخ کی طرف جائے گی۔ PIA نے اپنی تمام پروازوں کو ایرانی فضائی حدود استعمال کرنے سے روک دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے جب تک صورتحال واضح نہیں ہو جاتی ایران کی فضائی حدود استعمال نہیں کی جائیں گی۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل بے قابو ہو گیا۔ بیروت سمیت لبنان کے مختلف علاقوں پر گولہ باری، مزید 95 شہری شہید، سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ جنوبی لبنان میں گھر پر اسرائیلی بمباری سے 10 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں نے مہاجر کیمپ میں الاقصی بریگیڈ کے کمانڈر منیر المقتدی کے گھر پر بھی بمباری کی۔ بیروت میں TV چینل السرات کی عمارت پر بھی اسرائیلی حملے۔ حزب اللہ نے لبنان پر اسرائیلی زمینی حملے کی تردید کر دی۔ اسرائیل کے شام میں بھی حملے، دمشق میں شامی براڈ کاسٹر سمیت 3 افراد جان سے گئے، متعدد زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کی غزہ پر بارود کی بارش، نصیرات کیمپ پر بمباری سے 23 فلسطینی شہید۔ وسطی غزہ میں اسکول پر حملہ، 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ لبنان کے بعد اسرائیل ترکی پر نظریں جمائے گا۔ گریٹر اسرائیل کا یہی منصوبہ ہے۔ اسرائیل کو ابھی نہ روکا گیا تو پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ ترک صدر نے خبردار کر دیا۔ طیب اردوان نے پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا قابض صہیونی فوج ایک طرف فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہی ہے، دوسری طرف لبنان پر بمباری۔ اسرائیل کے لبنان میں زمینی آپریشن کے نتائج ماضی جیسے نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ مزید خون ریزی ہو، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی ادارے اسرائیل کو روکیں۔ عالم اسلام کو بھی لبنان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اسرائیل اب بدمست ہاتھی کی طرح یمن اور لبنان پر چڑھائی کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو۔ حافظ نعیم الرحمان کی اپیل، امین جماعت اسلامی کے سربراہی میں وفد کی PTI قیادت سے ملاقات۔ 7 اکتوبر کو ملین مارچ میں شرکت کی دعوت دے دی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا تمام تر اختلافات سے بالاتر ہو کر فلسطین کے لیے ہمیں ایک ہونا ہے۔ PTI 7 اکتوبر کو جماعت اسلامی کے ساتھ نکلے گی۔ جماعت اسلامی تمام جماعتوں سے بات کرے گی۔ حکومت اعلیٰ ظرفی دکھائے اور 7 اکتوبر کے لیے اعلان کرے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہم عوام میں ایک ہی موقف لے کر چلیں گے۔ بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ بابر اعظم نے پاکستان ٹیم کی کپتانی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بابر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کپتانی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ پاکستانی ٹیم کی کپتانی سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، یہ کہنا ہے بابر اعظم کا۔ بطور کھلاڑی اپنی کارکردگی پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ کپتانی کا تجربہ تھا لیکن ورک لوڈ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ بابر اعظم نے پاکستان ٹیم کی کپتانی سے استعفیٰ دے دیا۔ بابر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کپتانی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا۔ IMF کا یہ پروگرام آخری ہوگا۔ کرنسی مستحکم ہے، مہنگائی کم ہوئی جس سے پالیسی ریٹ نیچے آیا۔
IPPs और CPEC से मुतालिक चीन से बातचीत की जा रही है। चीनी IPPs की पेमेंट रीप्रोफाइलिंग करा लेते हैं तो अवाम को फायदा पहुंचा सकेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा PIA की निजकारी अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएगी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट आउटसोर्सिंग और 3 डिस्कोस की निजकारी भी अक्टूबर में हो जाएगी। इस्लामाबाद के बाद लाहौर कराची एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग करेंगे। जून 2025 से पहले मुतालिका महकमे और वजारतें खत्म करने का अमल मुकम्मल हो जाएगा। 1 वजारत खत्म, 2 को जम और 3 की राइट साइजिंग कर रहे हैं। सितंबर में टैक्स के मुकम्मल अहदाफ हासिल कर लिए। 5 लाख नए फाइलर रजिस्टर हुए। टैक्स में 50 बिलियन रुपए का इजाफा हुआ। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 44 माह की कमतरीन सतह पर आ गई। 9.6 से कम होकर 6.9%। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में इस्तेहकाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इजहार तशक्कुर, कहा महंगाई की शरह कम और पेट्रोल कीमतों में मुतवातिर कमी से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों का मंसूबा नाकाम हुआ। मईशत मुस्तहकम, सिफारती ताल्लुकात मजबूत और आम आदमी की खुशहाली का सफर शुरू हो चुका। आईनी तरमीम की जद्दोजहद काजी फाइज ईसा के लिए नहीं कर रहा। फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर में से कोई भी आईनी अदालत में बैठे, कोई मसला नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, अपोजिशन कह रही है जो करना है करो, बस फाइज ईसा को आईनी अदालत का सरबराह ना लगाओ। कौन आएगा कौन नहीं, ये फैसला करने वाला मैं कौन होता हूँ। इस्लामाबाद में अदालती जंग से कोई ताल्लुक नहीं। हमें मुकद्दस गाय का तसव्वुर खत्म करना होगा। आप कैसे कह सकते हैं आईनी अदालत को नहीं मानेंगे? जो आइन में होगा इसे मानना पड़ेगा। जब कुर्सी पर बात आती है तो आइन याद आ जाता है। मुशर्रफ राज में आइन याद नहीं था। आर्टिकल 63 हमने लिखा है, सबसे ज्यादा हमें पता है इसका क्या मतलब है। हमारा मकसद हॉर्स ट्रेडिंग पर कदगन लगाना था, पार्लियामान के मेंबर को गुलाम बनाना नहीं। 2008 में आईनी तरामीम पर इत्तेफाक राय ना बना सके, ये शहीद बेनजीर भुट्टो का नामुकम्मल मिशन है। जस्टिस मुनीब के खत के बाद आर्टिकल 63 नजरसानी केस का बेंच तब्दील। जस्टिस मुनीब अख्तर आउट, जस्टिस नईम अफगान इन। नजरसानी अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, लगता है आर्टिकल 63 का फैसला तहरीक आदम एतमाद गैर मुअस्सर बनाने के लिए था। जो रोज पार्टी तब्दील करते हैं वो बाज़मीर हैं या बेईमान? हम कौन होते हैं किसी के ज़मीर का फैसला करने वाले? तहरीक आदम एतमाद में वोट गिना ना जाए तो वजीर आज़म को हटाया ही नहीं जा सकता। एक तरफ राय दी गई मुनहरिफ रुकन डी सीट होगा और दूसरी तरफ कहा गया ना अहली की मुद्दत का फैसला पार्लियामेंट करेगी। ये तो तजाद है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने कहा, फैसले में कहा गया इन्हिराफ करप्ट प्रैक्टिस जैसा है, ये फैसला आइन दोबारा लिखने जैसा है। बानी PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर ने नजरसानी की मुखालिफत की। समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। समाअत के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया, आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समाअत के दौरान कई सवालात सामने आए। फरीकैन इन सवालात पर मुआवनत करें। बरतानिया और अमरीका समेत दीगर मुल्कों में इन्हिराफ की हैसियत से आगाह करें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बताया, कल जस्टिस मुनीब अख्तर को खत लिखा, उन्होंने पोजीशन बरकरार रखी। जस्टिस मंसूर अली शाह को कमेटी में बुलाया, वो नहीं आए। कमेटी और बेंच दोनों में शमूलियत से इनकार किया। उसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। वो नहीं चाहते थे दूसरे जजों को डिस्टर्ब किया जाए, इसलिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने नजरसानी केस में जस्टिस नईम अख्तर अफगान को शामिल किया। अब सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी कर दिए गए। मुल्क में आईनी बहरान के साथ साथ जुडिशल बहरान भी हो गया है। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, उम्मीद है कल की बहस के बाद इस बेंच को खत्म कर दिया जाएगा। ये बेंच गैर कानूनी और गैर आईनी है। जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं थे, 2 रुकनी कमेटी ने बेंच तश्कील दिया। पीपल्स पार्टी का आईनी तरामीम के लिए इत्तेहादी अपोजिशन जमातों से मुशावरत तेज करने का फैसला। शहरी रहमान और नैयर बुखारी की ANP और काफ लीग वफ्द से मुलाकातें।
चौधरी सालिक और हिदायतुल्लाह से आईनी तरामीम से मुतालिक बातचीत की गई। शहरी रहमान कहती हैं कोशिश है 2006 के मिसाक जमहूरियत के मुताबिक आईनी अदालत का क़याम हो, आईनी तरामीम का अमल फर्द वाहिद के लिए ना हो, विफाकी आईनी अदालत में सूबों की भी नुमाइंदगी हो। आईनी तरामीम पर इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। रात के अंधेरे में चोर दरवाजे से बिल लाना हमारा वतीरा नहीं। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत आईनी तरामीम में नाकामी की वजह अहम वफाकी वजीर को समझती है। ज़राए के मुताबिक नून लीगी क़यादत ने नवाज शरीफ को चंद रोज़ पहले अपनी राय से आगाह कर दिया था। अहम वफाकी वजीर ने नून लीगी रहनुमाओं को बताया मौलाना फजलुर रहमान तरामीम पर राजी हैं। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है मौलाना फजलुर रहमान के राजी होने तक मुस्लिम लीग नून अब आगे नहीं बढ़ेगी। नून लीग के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुतल्लिक़ा वफाकी वजीर पीपल्स पार्टी के जरिए मौलाना से राब्ते में हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात, बिला मुकाबला JUI के अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी का कहना था पार्लियामान की बालादस्ती जमहूरी इक़दार के लिए मौलाना फजलुर रहमान का किरदार काबिल तहसीन है। मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक, मुदब्बिर और दूर अंदेश सियासी रहनुमा है। आईनी तरमीम समेत काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी, PTI को मायूसी होगी। आईनी अदालत बनेगी, जो पुरानी खबरें बताई थीं वैसा ही होगा। सेनेटर फैसल वावडा की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा इस हुकूमत को गिराने के लिए जलसे जुलूस की ज़रूरत नहीं, ये अपने लिए खुद ही काफ़ी हैं। मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की बात हो तो सियासतदान की मुद्दत तवील क्यों होती है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा आज मुल्क में आईनी तरमीम की बात हो रही है जबकि ऐवान ही मुकम्मल नहीं, एक सूबे की सेनेट में नुमाइंदगी ही नहीं। FBI ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 14 दिन की तौसीह कर दी। इनकम टैक्स गोशवारे 14 अक्टूबर तक जमा करवाए जा सकते हैं। सितंबर में FBI ने हदफ से 2 अरब रुपए ज्यादा टैक्स वसूल कर लिया। 35 लाख गोशवारे जमा कराए गए। इनकलाब आता है तो लाखों का मजमा होता है, 4 कंटेनर से इनकलाब नहीं रुकता। वजीर इत्तलात अतातारर का कहना है 10 वजीर, 5 सरकारी गाड़ियां और 200 लोगों के साथ इनकलाब नहीं आता। तब्दीली का जज्बा, इनकलाब का ऐलान सिर्फ इसलिए है मुआशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। अमन व अमान को खराब करने की कोशिश को रियासत बर्दाश्त नहीं करेगी। पंजाब हुकूमत ने मियांवाली में 7, फैसलाबाद, टोबा टेकसिंग और बहावलपुर में 2 दिन के लिए दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। तहरीक इंसाफ ने कल एहतजाज की कॉल दे रखी है। जिले इंतजामिया की सिफारिश पर मियांवाली में रेंजर्स की तैनाती का फैसला। ओज शरीफ में पुलिस के छापे, PTI के 8 कारकुन गिरफ्तार। मरियम नवाज उतना जुल्म करें जितना कल को वो बर्दाश्त कर सकें। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने इल्जाम लगाया मरियम नवाज के हुक्म पर बुशरा बीबी को जेल में तंग किया जा रहा है। रात में जगाकर तलाशी के बहाने जहनी अजियत दी जा रही है। मरियम नवाज की हुकूमत में खवातीन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अज़मा बुखारी ने जवाब दिया झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। अपनी सियासी दुकान चमकाने के लिए रोज मरियम नवाज का नाम मत लिया करें। बुशरा बीबी अंडे, मुर्गी या यखनी पुलाव खाएं, इसकी मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। मरियम नवाज को कोट लखपत नैब के अकूबत खाने में बुशरा बीबी की ख्वाहिश पर रखा गया था। उन्होंने जेल की सख्तियां बर्दाश्त की लेकिन कभी औरत कार्ड इस्तेमाल नहीं किया। सिंध की ईरानी कौंसल खाने आमद हसन नसरुल्लाह की शहादत पर इजहार ताज़ियत, कहा ईरान पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, ऐसे वाक़यात होंगे तो ताज़ियत के लिए आएंगे। लेबनान और गजा में इसराइली हमले जारी हैं। आलमी अदालत का फैसला भी आया लेकिन ताहाल इसराइल का जुल्म जारी है। दुनिया का कोई मजहब भी कत्ल गारत की इजाज़त नहीं देता। तमाम इस्लामी मुल्कों को इस मामले पर बैठना होगा। मुमताज़ स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक से पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर अयाज सादिक की मुलाकात। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा पाकिस्तान के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। उम्मत मुस्लिमा को इख्तलाफात भुलाकर कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मेरे तबलीगी काम का मकसद दुनिया में इस्लाम के अमन और मोहब्बत के हकीकी पैगाम को उजागर करना है। सरदार अयाज सादिक ने कहा डॉक्टर जाकिर नाइक की अमन और मोहब्बत के पैगाम को आम करने की काविशें काबिल सताइश हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक की JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ 5 रोज का टेस्ट मैच 3 दिन में जीत लिया। मैच का दूसरा और तीसरा दिन बारिश के बायस वॉश आउट हुआ।
टेस्ट मैच ड्रॉ की जानिब गामजन था, लेकिन चौथे रोज 18 विकेटें गिरी। भारत ने बांग्लादेश को पहली इनिंग्स में 233 रन पर आउट किया, फिर सिर्फ 35वें ओवर में 9 विकेट पर धुआंधार 285 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। आखिरी रोज बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 146 रन पर ढेर हो गई। भारत ने 95 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल करके मैच और सीरीज अपने नाम कर ली। आईसीसी इवेंट में पहली हिजाबी क्रिकेटर। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप स्कॉटलैंड की अब्तहा मकसूद हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली क्रिकेटर होंगी। कहती हैं हिजाब पहनकर खेलना मायूब नहीं समझती। लेग स्पिन शेन वॉर्न को देखकर शुरू की। इवेंट की बेहतरीन खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। अब्तहा ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट और मुस्तकबिल की डेंटिस्ट भी हैं। और कौमी क्रिकेटर्स बाबर आजम और सरफराज अहमद की जर्मन कौंसल खाने में कौंसल जनरल डॉक्टर रूडिगर डोटिस से मुलाकात। कौंसल जनरल ने कहा, जर्मनी खेलों की सरगर्मियों और खिलाड़ियों को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दुनिया में मकाम रखते हैं। जर्मनी में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिकेट के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पथरीली जमीन, रेत के मैदान और पहाड़ी रास्ते। गोरखहिल के दामन में पहली मरतबा ऑफ रोड बाइक रैली। चैंपियन का फैसला आज होगा। मुल्क भर से रेसर्स एक्शन, खवातीन बाइकर्स भी हिस्सा ले रही हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है और कराची के लेवल पे हो रहा है, और जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। आलमी सकाफती मेले में दुनिया भर की तहजीबों के इम्तजाज, कहकों की बारिश, मज़ाहिया थिएटर प्ले। कराची का बिच्छू में पाकिस्तानी थिएटर फनकारों ने खूब दाद समेटी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप तालीम बालिगा 2.0 पेश करेगा।